হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য অরুণ মুখার্জি শো। অনেকদিন পরে আবার এসছি আপনাদের সামনে আরেকজন ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটিকে নিয়ে, আরেকজন অন্টারপ্রেনারকে নিয়ে যে একটু ভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে। তিনি ব্যাংকার ছিলেন, ইনফ্যাক্ট তিনি ভবানীপুর কলেজের মতন একটা রেপুটেড কলেজের প্রফেসর ছিলেন। তারপরে মনে হলো দূর, একই সেই গতানুগতিক কাজ, একটু ব্যবসাতেও নামা যাক রাদার। আজকের দিনে উনি প্রায় 2 কোটি টাকার ব্যবসা করছেন। তো আর দেরি না করে আমাদের আজকে গেস্টকে ওয়েলকাম করা যাক। কুনালজি, ওয়েলকাম টু দ্য অরুণ মুখার্জি শো। Thank you, Anil. ইটস আ গ্রেট প্লেজার হ্যাভিং ইন মাই শো। It's a great honor equally to be sitting beside you. मतलब मतलब एक बैंकर, राइट, एक बैंकर से, एक प्रोफेसर से एक एंटरप्रेन्योर बनना हुआ कैसे? सर, एक जर्नी ऐसा रहा कि जिसमें काफी अप्स एंड डाउन्स रहे. लाइफ जहां ले गई हम वहां गए. So Standard Chartered Bank was the bank that I joined, and I was there for 2 years there, 2.5 years. So that was a placement from the college, MBA college, where I pursued my MBA, and the placement was in Calcutta. I was in SME Forex of Standard Chartered Bank. Post that, I joined one company which was like, I think many in Calcutta have heard the name, Royal Cruiser. Right, They were the first ones to bring Volvo buses in Calcutta. right. There was Bangladesh, Calcutta to Dhaka, there was a journey. Then they were present in Eastern India. Gradually, they were in Delhi, Rajasthan, Haryana. And during that time, I was heading the treasury. Post that, in 2013 onwards, I was heading their finance as well. I was there till 2016. But then, from very early in life, I had this teaching ka junoon. So, while I was in Royal Cruiser, I saw an advertisement in the newspaper that Bhawanipur College needs professors. I had a habit of reading newspapers. So I just applied, thinking that kya hi jata hai, kar dete hai. And the college was from 6:15 in the morning. Right. So it did not disturb the college time, office timing. 10:30 office timing tha. So I applied, and it happened. So 2010-11 I joined college, and I was there in the college till 2015-16. 2012 I got married. I had a kid by the end of 2013. So the whole days from 6:15 to 10 o'clock I used to work. तो घर में भी बोलते थे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तुम उसको देखोगे. तो फिर 15-16 के बाद I decided to quit college. I continued with my corporate job, but then teaching was still happening. So in his name, I launched a educational center, ACE Classes, where we taught students for BCom, BBA, MCom, MBA, and also prepared them from CAT, MAT, ZAT, CLAT. There were about 18-20 professors from different various colleges teaching there. And that happened till second wave of COVID. Right. Post that, we shut it down because I had to focus on this current business that I'm currently doing. So post 2016, when I left Royal Cruiser, I joined another, it was a medical college and hospital by the name Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences and Hospital. And I was the founder CFO there. I was there till 2018, when I decided that half of my life is done. Now rest half, I'll focus on building something on my own. खुद के लिए कुछ करना है. अभी तक तो दूसरों के लिए किया था. रॉयल क्रूजर जब हमने चालू किया था तो बहुत ही जो वॉल्यूम था, जो उनका सेल्स था, वो जब मैंने छोड़ा तो इट वाज
आई थिंक मोर देन 10 टाइम्स। तो वैसे ही जिम्स में भी हुआ था। तो फिर अपना कुछ चालू करना था, इसलिए चालू किया। पहले तो बहुत समझा कि क्या करे, कैसे इसी में करे। मुझे पूछना है, जी। व्हाट वाज दैट यूरेका मोमेंट कि मुझे ये करना है, पील्ड लहसुन करना है? अभी देखिए, मैं जहाँ रहता था, वो आप अगर यहाँ से कैलकाटा से जाओगे तो बाटा और बजबज के बीच में एक जगह है श्यामपुर, और श्यामपुर के बीचों बीच में क्या है कि 2 किलोमीटर ऑन दिस साइड ऑफ द रोड एंड 2 किलोमीटर ऑन दिस साइड ऑफ द रोड, दोनों तरफ ही बाजार बैठता है सुबह 6 से लेके 2 बजे तक। और मेरा घर बाजार के बीचों बीच में था, तो ऊपर से और भी अच्छा व्यू था, क्या राइट। बिक रहा है क्या नहीं, लोग आ रहे हैं। तो अब एक तो चल ही रहा था, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था कि मुझे फॉर द सेक ऑफ सब्सिस्टेंस मेरे को ये करना है, बट ये था कि कुछ करना है। तो जब मैं बाजार में था, तो जो आपके नजर के सामने पड़ता है आप उस पर ही ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हो। एब्सोल्युटली। तो मेरे घर के नीचे ही एक एक दुकान बोल सकते हैं, बहुत बड़ा होलसेलर का था, जिसके पास बहुत आलू आता था, बहुत प्याज आता था, गार्लिक आता था, जिंजर आता था। तो मैं देखता था कि भाई इसके पास तो सबसे ज्यादा भीड़ है, मतलब ये सब हॉटेस्ट सेलिंग आइटम्स है। तो फिर मैं सोचा कि इसमें कुछ करते हैं। तो इसमें कुछ करने के पहले अब क्या करें पता नहीं, तो मैंने पहले समझने की कोशिश की कि है क्या। तो मैं जो आलू का कोल्ड स्टोरेज होता बांकुड़ा, वहां Right. गाड़ी चला के खुद गया, साथ में दो एक और भी मेरे लोग थे जिनके साथ मैंने सोचा था करूंगा। तो बांकुड़ा में कोल्ड स्टोरेज में गया, बहुत बात किया। फिर मैं वैसे ही नदिया गया, जहाँ पे कि बंगाल में गार्लिक ग्रो करते हैं, वहाँ गार्लिक फार्मर से बात किया। कूच बिहार गया, जहाँ की जिंजर आसाम के सिंस नियर है, वहाँ का क्वालिटी ऑफ जिंजर बहुत अच्छा है। फिर मैं धूलागढ़ मार्केट, पोस्टा बाजार, सियालदा बाजार, न्यू मार्केट, सब जगह गया ये देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो एक दिन न्यू मार्केट में गया, तो देखा एक आदमी एक लकड़ी का जो अ पर्सन वाज सिटिंग विद अ वुडन, जिसको बंगाली में झुड़ी बोलते हैं। Right. তো আমি দেখলাম যে ভাই এই ঝুড়ি নিয়ে কি করছে। তো গেলাম দেখতে কি আছে, দেখলাম সাদা, একদম সাদা রসুন, তাতে কোনো স্কিন নেই। সো আই থট গ্রেট প্রোডাক্ট। I asked him, I saw it from far away because I didn't want to disturb him. There was 10, 12, 15 kgs of garlic with him then, and his sale was about to end. So I didn't disturb him then. I observed and came back. 2, 3 days later, I went again with the desire to purchase. Otherwise, he will not talk to me. Right. So सुबह गया ताकि उसके पास टाइम रहे, 5:30 बजे गया। वहां पे जाके देखा, उससे बात किया, 2 किलो गार्लिक लिया। क्या करूंगा उस 2 किलो का मालूम नहीं, बट ले लिया। तो वो गार्लिक, मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो तुम बेच रहे हो, ये बनाते कैसे हो? तो बोला भैया ये मेरा तो बहुत दिन का बिजनेस है, मेरा फैमिली बनाने का कोशिश करता है, और हम लोगों ने 10-15 लोग मिलके बनाते हैं, दिन में 40-50 किलो बनता है। क्यों भाई, और भी बन सकता है? बोले नहीं, और बन नहीं सकता क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे में 2 से 2.5 किलो ही बना सकता है कोई भी, अगर एक आदमी हो, और अगर एक्सपर्ट हो जाए बहुत तो 2 घंटा लगेगा ही उसको। तो मैंने समझा उससे, फिर उससे पूछा कि भाई अगर तुमको अगर और माल मिले तो तुम बेच लोगे? बोले हाँ, लोग आते हैं पूजा के टाइम में बहुत, ठीक है। तो वो मेरे को हिट किया कि पूजा का टाइम। तो बाय दिस टाइम इट वाज ऑलरेडी November 2018. I had quit my job in about April 2018. So
we as a group who all went, I told them भाई ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो लोगों तो का तो इंटरेस्ट नहीं रहा, बट सिंस आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, आई स्टार्टेड रिसर्च कि ये जो माल है ये कैसे बन सकता है। तो गुजरात में कुछ ऐसे मशीनरीज थे, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे जो ये मशीनरी बनाते थे। तो अब मशीनरी बना तो रहे हैं, बट उसका एफिशिएंसी है कि नहीं ये देखना जरूरी था। तो हम लोग गुजरात भी गए, वहां पे 2 ऐसे कंपनीज थे जो लोग ये काम कर रहे थे और सेल हुआ था। मैंने पता किया कि क्या सेल हुआ था। उन लोगों ने काजू बनाने वाला कुछ मशीन खड़गपुर में बेचा था। तो वहां प्रोडक्शन करके देखा। अब गुजरात का लहसुन थोड़ा पतला होता है, ओके। उसका जो स्किन होता है वो पतला होता है, तो आसानी से गल जाता है। और एमपी का या राजस्थान का या सहारनपुर यूपी का, उसका स्किन थोड़ा मोटा होता है, उसका निकलने में वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है। तो देखा प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आया कि ठीक है, थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन करने से ये पूरा ये इतना तो माल निकल ही जाएगा। फिर बताया उन्होंने 100 kg पर घंटे हो सकते हैं, ये जो भी उन लोगों को बोलना था। तो मशीनरी अभी तक लिया नहीं था, थोड़ा एडवांस कर दिया कि भाई जब मैं बोलूंगा तब भेजना। फिर हमने सोचा कि भाई इस पे अब क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट तो है, एक लेटेंट डिमांड भी है, पूजा के टाइम में पिकअप भी करता है। बट उस तरह से मेरे को भी उस टाइम तक पता नहीं था, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले को भी पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है। फिर हमने इस पे काम किया, क्या नाम रखे। तो सिंध लहसुन है और लहसुन ही बेचना है, और वाला तो अपने इंडिया में कहीं भी ऐड कर दो, भुजिया वो वाला हो ही जाता है, पुचका वाला, भुजिया वाला, जो भी आप ऐड कर दो। तो हमने भी लहसुन के साथ वाला ऐड कर दिया। नाम तो ठीक ही था, बहुत लोगों को पसंद नहीं, बोले ये क्या नाम है। हमने बोला ठीक है जो है, अब इस पे काम करते हैं। फिर हमने उसका हम लोगों ने लोगो डिजाइन किया कि क्या ब्रांड हो सकता है इसको। उसको फिर हम लोगों ने आईपी किया, क्लास 29 और 31 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, उसका नाम दिया लहसुन वाला एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट। कौन सा ईयर था ये? ये आपका अर्ली 2019 था, प्री कोविड? जी। अभी तक कंपनी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ये प्री कोविड तो, हाँ प्री कोविड तो, 18 में आप कोविड आया था छोड़े? 20 में। 18 में आप नौकरी छोड़े जी। और 1 साल में मोटा मोटी देख के नाप के कि बिजनेस कैसा हो सकता है, डिमांड कैसी है, मशीन से बेहतर एफिशिएंसी आ सकता है नहीं, मतलब आप पूरा जितने भी तौर तरीके थे लहसुन के सब मोटा मोटी सीख लिए। बिल्कुल, हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश किया कि इसको किसको बेच सकते हैं, और जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हुआ। 4 सितंबर 2019 को हमारा कंपनी फॉर्मेशन हुआ, और 3 अगस्त दुर्गा पूजा, 3 अक्टूबर 2019 दुर्गा पूजा का पहला दिन था, उस दिन हमारा पहला सेल हुआ। अच्छा। कस्बा इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमने एक फैक्ट्री सेटअप किया, सारे मशीन्स को मंगाया, उससे प्रोडक्शन चालू किया। पहले 1 महीने हमने ट्रायल प्रोडक्शन किया मशीन आने के बाद, और धीरे 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 जब प्रोडक्शन हम लोगों का परफेक्शन आने लगा, तब तक हम मार्केट में नहीं गए। जब देखा कि नहीं अब ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, तो हम लोगों ने मार्केट में अप्रोच किया। कैपेसिटी क्या था उस मशीन की? था तो 100 kgs पर आवर। ओके। बट उस मशीन में जब हम काम करते रहे तो हमको समझ आया कि 85% ही पील होता था। What was the capital investment for such machines? स्टार्ट मशीन्स के लिए तो हम लोगों ने लगभग 3.5-4 लाख रुपए खर्च किए, Okay. जिसमें आपका एक कंप्रेसर था, एक गार्लिक पीलिंग मशीन था, और एक बल्ब ब्रेकर था। Okay. और बाद में फिर एक ड्रायर भी लिया था कि अगर मॉइस्चर आ जाए तो उसको बारिश के सीजन में, या लहसुन जब पुराना हो जाए तो उसको कैसे करना है। तो बाद में एक ड्रायर भी था। तो 4-4.5 लाख का खर्चा है मशीनरी के लिए।
और फिर हमने सेल चालू किया और धीरे धीरे लोगों को क्लाइंट्स को पता कैसे चला कि ऐसा भी चीज है? क्योंकि मतलब इट्स वेरी सिंपल बट वेरी अनकॉमन है। बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लोग को जा जाके समझाना पड़ता था कि भाई ये देखो, ये गार्लिक है। पहले लोग सोचते थे काजू है। अगर हमारे डिलीवरी के लोग बाहर लेके जाते थे बोलते ये काजू है, काजू कैसे दिखता बेच तो रहे वैसा हो? ही है, मतलब पूरा सफेद। तो फिर हमने धीरे 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 बहुत टाइम लगा लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि ये ऐसा भी प्रोडक्ट है। फिर उन लोगों को समझाना पड़ता था कि भाई आप 1 किलो गार्लिक लोगे बाजार से, उसको छिलोगे तो 750 ग्राम ही मिलेगा। राइट। तो बेसिकली आप अगर 100 रुपए में खरीद रहे हो होल गार्लिक और आप 750 लेके आ रहे हो तो आपका प्राइस 125 पड़ रहा है पर केजी, राइट। और हम आपको 100 रुपए में 1 किलो ही दे रहे हैं वो भी छिला हुआ। विदाउट आपको आपका 4 घंटा बचाते हुए। आपका कोई मैन पावर कॉस्ट नहीं लगेगा, आपका कोई मेसी किचन नहीं होगा, कोई हैसल नहीं होगा। आप लीजिए, क्लीन है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, यूज कीजिए, आपका टेस्ट एनहांस होगा। फिर धीरे धीरे लोग समझते गए, हम लोग कस्टमर ऐड करते गए, ऐसे ही हुआ धीरे धीरे। और आज के डेट में हम कैलकाटा को तो सर्व करते ही हैं। आप बिहार में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिटीज है, पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, देवघर, उड़ीसा में कटक, बहरमपुर, भुवनेश्वर, पुरी, बंगाल में दीघा, मंदारमनी, मुर्शिदाबाद, मालदा, खड़गपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, और बिसाइड्स कैलकाटा में तो हम खुद ही डिलीवर करते हैं। हमारा खुद ही एक नेटवर्क है अपना खुद का, हमारे ईवी व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू हम होल कैलकाटा पिन कोड से खुद से सेल्फ डिलीवरी करते हैं। मतलब एक मानो बिजनेस की जो वैलिडेशन है वो नंबर्स ही बयां करती है। आप अगर सही राह पे चल रहे हो तो योर नंबर शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, राइट? तो सिंस द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम 2019 टू 2025, मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके नंबर्स आपके फिंगरटिप्स में होना चाहिए जी। तो अगर आप पूरा ये जर्नी आप अगर बयां कर सको तो फ्रॉम 2019 टू 2025 हम टॉक अबाउट द सेल्स। तो 2019 में हमने 3 अक्टूबर को चालू किया और 20th मार्च 2019 तक हमने ऑपरेट किया। अच्छा, दैट वाज माय बर्थडे, 20th मार्च। तो क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया था कि भाई 22 तारीख से लॉकडाउन होने वाला है, Right. तो भाई जो जो काम कर रहे थे उन लोगों को पैसा दे के स्टॉप कर देना था, नहीं तो उन लोगों को क्या होगा क्या पता। तो नेक्स्ट टाइम आई कीप इन माइंड 20th मार्च एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर मी। सो उस साल हमने 6 महीने ऑपरेट किया, नियरली 6 months, एंड वी क्लॉक्ड अ रेवेन्यू अबाउट 15 lakhs। वेरी नाइस। तो पहला साल तो समझाने में ही चला गया कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है, पर लोगों ने एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे किया बट किया। फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद वापस से सब कुछ स्क्रैच से चालू करना था। तो जब भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए परमिशन आ गया तो हमने चालू किया ही 18 मार्च को और 18 मई को, और 20th मई को अम्फान आ गया। राइट। पूरा कलकत्ता में पेड़ गिर गया, मशीन में भी थोड़ा नुकसान हो गया। तो बट एनीवेज वी कंटिन्यूड, 2-4 दिन का ब्रेक लिया, फिर कंटिन्यू किया। बहुत कम आउटलेट्स खुले थे, कुछ कुछ धीरे धीरे खुल रहे थे, बट वी वर देयर एंड कंटिन्यूटी में आई बिलीव। तो वी कंटिन्यू एंड दैट ईयर वी क्लॉक्ड अ रेवेन्यू ऑफ अबाउट 64.7 lakhs। वाओ, 15 से 64। जी। वाओ। फिर हम मार्च 2021 में हमने 64.7 पे क्लोज किया। अगले साल भी तो कोविड चल ही रहा था, Right. नेक्स्ट फेज ऑफ कोविड। उस ईयर हमने 1.02 पे क्लोज किया। करोड़ रुपए माइलस्टोन।
मतलब घर वाले जताए खुशियां कि हाँ भाई फाइनली यू डिड इट, 1 करोड़ रुपए बहुत होता है हाँ उस होता है। चीज का जो मतलब यानी 1 करोड़ में अगर आप बोल सकते हो कि कितना टन लहसुन। बिल्कुल, आप समझ लो कि अगर आप 100 रुपया लहसुन बेच रहे हो तो राइट करोड़ रुपए में कितना लहसुन आपको बेचना पड़ेगा? कम से कम 1 लाख राइट। केजी तो बेचना ही पड़ेगा। फिर 1 लाख किलो लहसुन मतलब कैसे दिखता होगा, मतलब पहाड़। दिखता तो खैर बिल्कुल सही बात है कि 1 लाख किलो लहसुन कितना होता होगा। हाँ मतलब फिर नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो हम 1.47 पे थे। वाह। ये था आपका 22-23। 23-24 पे हम 1.98 पे थे। 2 करोड़ टच करने का था बट समहाउ बाकी 20,000 नहीं हो पाया। बट एनीवेज वो याद रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये एक लेसन है। फिर ये 24-25 में, मार्च 25 में हमने क्लोज किया 2.21 करोड़। वाह। एंड आपने अभी तक सिंस काफी लोग हैं, ऐसा लगता है कि यू नीड लॉट ऑफ कैपिटल टू स्केल अप योर बिजनेस। आज तक अपने अपने जेब से, क्योंकि यू आर बूटस्ट्रैप टिल डेट, कितना पैसे आप डाले हो बिजनेस में? हमने जो स्टार्टिंग में डाला था लगभग 7-8 लाख रुपए, बस, बाकी पूरा बिजनेस से आया इंटरनल एक्यूरेल कुछ से? अर्निंग से, इंटरनल एक्यूरल है। और हमेशा से हम लोगों का यही फोकस था कि भाई अपने फंड से चलाना है और धीरे ही ग्रोथ हो, बट स्लो ग्रोथ हो, बट सॉलिड ग्रोथ हो। और फंड्स के, डेट के बारे में भी हमने नहीं सोचा, क्योंकि इतने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें आप जा सकते हो, देर इज अ डिजायर कि आप घुस जाओ, बट आपको रिटर्न करना होगा, राइट। तो वो एक एडेड प्रेशर हो जाता है। तो आज तक हम बूटस्ट्रैप दिए, इंटरनल एक्यूरेल से हमने ग्रो किया और प्रॉफिटेबली ग्रो किया। आई थिंक इफ यू टेक 5.5 years, इस September 4th को हमारा 6 years हो जाएगा। सो वी हैव ग्रोथ एट अ CAGR ऑफ अबाउट 56%। वाओ, दैट टू बीइंग बूटस्ट्रैप। यस। तो मानो मशीन इंटरेस्ट मी अ लॉट, क्योंकि अपने बेवरेज जो इतने सारे मेरे जो कंपनीज है, वो मशीन्स जो आते हैं मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ। बट आपके जो बिजनेस है राइट, मतलब फॉर समथिंग लाइक अ लहसुन, इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैनुअली और मशीन के जो इंटरवेंशंस है, मतलब वो पुसाता होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका जो मशीन वाली जो चीजें है, मैनुअल से ज्यादा शायद कॉस्ट आएगा। You are absolutely bang on here. There is no denying that if the production is lower, the electricity cost will be higher राइट per kg. But if you do it manually, the cost will be lower. So ये एक ऐसा strange scenario है जब automation का cost मैनुअल कॉस्ट से ज्यादा है, राइट। बट दैट गिव्स अ एडवांटेज कि इसमें डिसरप्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा क्या आप हम्बल बन रहे हो। अगर मैं ऑटोमेशन को हटा रहा हूँ, व्हाट इज माय मोटिवेशन टू कम इनटू योर बिजनेस एंड अंडरकट, जहां पे मैनुअली पूरा चीज होता है। इफ समवन इज डूइंग लाइक 100 tons of लहसुन इन अ ईयर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू एंटर इनटू अ बिजनेस, मैनेज द सप्लाई चेन एंड डिसरप्ट इट। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये जो टाइम हमने स्पेंड किया ना 6 years, ये हमारा कैपिटल है। राइट इस चीज को हर दिन घुस के, हर दिन वहां जाके, लगातार लग के, इस प्रोसेस को समझ के आसान नहीं है करना। और आई थिंक अगर आप बोले तो ये एंट्री बैरियर भी है लोगों के लिए, बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। कि आप ऐसे नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं हुआ, बहुत कॉपी हुआ और काफी लोगों ने काफी तरह से नुकसान भी किया, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। बट दैट इज आल्सो वैलिडेशन। यस यस। दैट एक्सपेंड्स द मार्केट, दैट वैलिडेट्स कि आप जो कर रहे हो वहां पे एक मार्केट है। क्योंकि बिजनेस में मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरा तजुर्बा लर्निंग रहा है, मतलब अगर शहद है तो मक्खी आ ही जाएगी। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, सेकेंड लॉकडाउन जब हुआ और ये प्रोडक्ट, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से हमारा प्रोडक्ट देखना चालू किया। उसके बाद जब hordes ऑफ पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस, तो मार्केट में चीपर वर्जन आ गया था।
एंड वी वर लाइक भाई क्या करें, फिश आउट ऑफ वाटर। बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो था कि हमारा जो कॉस्ट है उससे काफी कम कॉस्ट में दूसरे बनाना चालू कर दिए। ये पॉसिबल ही नहीं था, राइट? कैसे पॉसिबल था वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ये सोचने वाली बात है। हम लोगों ने बहुत समझा कि ये क्या हो गया, हमसे 10 रुपए नीचे कैसे बेच सकते कोई। राइट। 10 रुपए बहुत बड़ी बात है रेस्टोरेंट के लिए, 100%। पर केजी। तो फिर हमने गए वहां पे, टोपी मास्क वास्क लगा के गया देखने की, मैं खुद ही जाऊंगा देखने। तो जब देखने गया तो देखा कि भाई प्रोडक्ट तो बिक रहा है, बट वो प्रोडक्ट में इश्यू क्या है, मैं उसी दिन समझ गया कि ये हमारे को कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने देखा कि पूरा चिपचिपा है, इसका मतलब उसमें पानी है। मतलब वो मॉइस्चर अगर है तो वो ऐसे ही पूरा अगर आप हाथ में उठाओ तो आपके हाथ में चिपक जाएगा। राइट। तो फिर मैंने उससे बात किया कि भाई तुम कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, मुझे इतना माल चाहिए, मुझे दे दो। तो वो आदमी भी एक्साइटेड हो गया, वो ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ। तो मैं गया देखने उनके गांव जहां भी बना रहे थे वो लोग। तो मैंने देखा कि पहले तो विनेगर में डाल दिया, तो आपका गार्लिक का तो फ्लेवर गया, वो टेस्ट ही चला जाएगा, वो महक भी तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल पूरा। और वो उसके बाद क्या किया कि वो जो विनेगर में डालने के 5-6 घंटे बाद पानी में डाल दिया विनेगर को हटाने के लिए। ओके। और उसके बाद वो जो पानी है वो थोड़ा गर्म टाइप का है, गर्म पानी में डाल दिया। और फिर उसने वो मुझे प्राउडली समझा रहे, उसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, राइट। कि इसमें औरत लोग एक गरम जो बंगाली में जाके बोले चौ बाच्चा है, রাইট। চৌ বাচ্চায় ওটা ফেলে দিচ্ছে গার্লিক নিয়ে গরম জল, আর মহিলারা পা দিয়ে থ্যাপলাচ্ছে, সেই গার্লিকটা বিক্রি হচ্ছে আর লোকেরা জানতেও পারছে না যে কি খাচ্ছে। अब कॉन्ट्रास्ट टू आवर गार्लिक, ये जो गार्लिक है इसका शेल्फ लाइफ ही नहीं है, उसमें तो पूरा पानी जमा हुआ है। राइट। वो जो छिलका तो वो लोग छिल नहीं रहे। हम लोगों का क्या है मैं बताऊंगा, हम लोग क्या करते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, घस रहे हैं, और घस के वो छिलका तो पूरा निकल नहीं रहा है, ओके। उसमें पानी सीप कर रहा है। वो पानी आपके प्रोडक्ट को हार्डली 18 to 24 आवर्स में पूरा सड़ा दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुणाल जी, मतलब मानो मैं अगर मैं लॉन्ग टर्म हिसाब के सोचूं, जिस चीज सस्टेनेबली नहीं है वो कैसे किसी के साथ compete कर सकता है? मैं अगर लहसुन में पानी डालूं, द मोमेंट आई डू दैट मेरा सेल्फ लाइफ का वो बच गया, राइट? कि ढिंडोरा की बस चालू हो गया कि 18 20 24 घंटे में खराब होने वाला। एंड अगर मैं एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका सप्लाई चेन न जाने कहाँ कहाँ मतलब मुझे करना पड़ रहा है, मुझे कुछ इन्वेंटरी भी रखना पड़ रहा है, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल थिंग, राइट? Yes, it's not a sustainable thing, but that is happening. I tell you why. Because you know, हम जो इनका मेजर कस्टमर कौन है, रेस्टोरेंट्स। राइट। अब जो रेस्टोरेंट वाले हैं, किसी को 500 चाहिए, किसी को 1 किलो चाहिए, और आज का प्रोडक्ट वो आज ही खरीदेंगे और आज ही यूज करेंगे और आज ही उसको खत्म कर देंगे। अब आप देखो इतना स्विगी जोमेटो आ गया है, तो रेस्टोरेंट पे भी बहुत स्ट्रेस है। राइट। उन लोगों को अपना कॉस्ट कम करना है, प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज करके। बट मैं इंटरप्ट करूंगा, जी। सॉरी टू इंटरप्ट, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं जस्ट सोच रहा हूँ, राइट? बीइंग जी जी जी। मतलब कीपिंग माई सेल्फ इनटू योर शूज, कि लॉजिस्टिक्स वाइज तो नहीं पुसाएगा ना। हाँ, मतलब एक 5-10 किलोमीटर के रेडियस में ये चीज चल सकती तो है। डिलीवरी नहीं कर रहे वो लोग, राइट। जो भी बाजार जा रहा है वो उनसे खरीद रहा है, हाँ। वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच रहा है। मतलब आप जो करते हो कि आपका कटक में है, ये है, मतलब ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। नहीं, वो लोग एक जगह पे कुछ कुछ माल लेके बैठ रहे हैं, राइट। जो लोग आ रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं, जो वेंडर्स है जो सारे रेस्टोरेंट्स को वेजिटेबल्स दे रहे हैं Got it. वो लोग खरीद रहे हैं। उन लोग थोड़ी रेस्टोरेंट्स को बताएंगे कि कैसे बन रहा है ना, हाँ। रेस्टोरेंट वाले ओनर जानते हैं, फर्क भी नहीं पड़ता, उनको फर्क माल नहीं मिल पड़ रहा रहा है, चलो हो हाँ, गया बस। हमको अगर ये माल मिल रहा है, ये मेरे प्रोडक्ट यूज का है, हम ले लिया, लेने के बाद हमने उसको सब्जी में डाल दिया। अब सरप्राइजिंग देखिए, अगर आप इसको बहुत क्लोजली समझे तो वो जो छिलका है जो कि लहसुन के ऊपर लगा हुआ है,
आप उसको तो चॉप करके तेल में डालोगे, हाँ, फिर क्या होगा, तेल में वो छिलका जल जाएगा, राइट, आपके खाने का टेस्ट भी अल्टर हो रहा है। राइट, बट इतना माइन्यूटली शायद देखता नहीं होगा। लोग सोचते नहीं। इंटरेस्टिंग। तो ये मशीन वाली जो चीजें है, मतलब मशीन से बना रहे थे, फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो मैंने प्रॉब्लम कहा आपसे, तो आज के दिन में आप मशीन से ये चीज बनवाते हो कि मैनुअली कराते नहीं, हम क्या करते हैं, बल्ब ब्रेकर जो है उससे हम ब्रेक कर देते हैं, और वो जो ब्रेक किया हुआ गार्लिक है वो मैनुअली पील होता है। हो? ओके, 3 villages are there which we are working with. You can say that I don't know, adoption is a big word, but Wow. there are 3 villages wherein all the family members are involved in production of this. वैसे टोटल कितने लोग होंगे तो ये चीज ये काम करता है आपके लिए? ऐसे तो अगर देखा जाए तो सिर्फ पीलिंग में हमारे पास 350 लोग तो पीलिंग करते ही होंगे। तो मतलब अब हाउस वाइफ को प्रोफेशनल बना दिया, जी तो दैट इज लाइक हेड्स ऑफ टू यू। मतलब घर में तो वो लोग बैठते ही थे बिन कुछ जी काम के, अब उनको नौकरी दिला दिए, इससे जी, बेहतर क्या हो उससे क्या है, सकता पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है। है? राइट, तो उन लोग कुछ बल्क में अगर प्रोड्यूस करते हैं तो पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है। एंड फिर हम लोग भी उनके साथ खड़े रहते हैं ज़रूरत में, अगर किसी के कुछ मेडिकल इशू हुआ या चाइल्ड के एजुकेशन के लिए कुछ हुआ, वी स्टैंड बाय देम, और कोशिश करते हैं कि जितना भी, क्योंकि वो भी ऐसा एक काम कर रहे हैं जो कि बहुत आसान नहीं है, जिस पे मेरा बिजनेस टिका हुआ है। तो उन लोगों के साथ हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जितना भी खड़ा हो सके। राइट। एंड अभी आप ये जो लहसुन मतलब जी मंगवाते हो, जो आपके वेंडर्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मतलब फार्मर्स? सर, देखिए, इस बिजनेस में डायरेक्टली आप फार्मर से परचेज करोगे तो ऐसा बहुत चांसेस है कि आप धोखा खा सकते हो, ओके, क्योंकि गार्लिक में क्या है कि बहुत बार एक ऐसा डिजीज आता है जिससे गार्लिक येलो हो जाता है, ओके, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप फार्मर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि वो बहुत ऐसा पेस्टिसाइड्स डाल रहा है जो कि हार्मफुल हो सकता है। और इसलिए हम फार्मर्स जहां मंडी में बेचते हैं, हम मंडी से खरीदते हैं, ट्रस्टेड जो हमारे साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं उनसे खरीदते हैं। तो आइडियली हम लोगों को एक क्रेडिट भी मिल जाता है, और वो बेसिकली एक लाइफलाइन है, क्योंकि उससे हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव होता है। तो हम चुन के ही गार्लिक लेते हैं, और एमपी से जनरली हम लोग परचेज करते हैं, क्योंकि उस गार्लिक का जो टेस्ट है, एमपी अबाउट 60-70%, 65-70% गार्लिक प्रोड्यूस करता है इंडिया का, एंड हम वहीं से गार्लिक लेते हैं, और फिर हम लोग उसके पीलिंग करवाते हैं। मतलब जानकारी के लिए एक चीज पूछना है, जैसे मानो अपना स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड है, आप जानते हो, तो कुछ साल पहले नोएडा में पेप्सी के हेडक्वार्टर्स में जी हम लोगों ने एक वर्कशॉप करा था। जी एंड जो पता चला कि पेप्सी के जो लेज, ये जो चीजें हैं, मतलब चिप्स एंड ऑल, जी वो लोग आलू खुद से उगाते जी हैं, जी राइट? जी तो अलग टाइप का आलू होता है। जी तो ऐसा कभी ख्याल आया आपके मन में कि मैं किसानों के साथ टाई अप करके मैं खुद ही ये मैन्युफैक्चर कर लूं? जी, ख्याल तो आया। आप जिस आलू की बात कर रहे हो उसको पेप्सी आलू भी बोलते हैं, तो वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ आलू है, राइट, और उसका भी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, बट थोड़ा यूनिक होता है, हार्ड होता है नॉर्मल आलू से। तो ये ख्याल तो आया, बट क्या है कि ये उस लेवल पे हम जब करेंगे, जब हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, और आई थिंक करने को किया जा सकता है, बट एक सजेशन है आपकी तरफ से, इस पे ध्यान दिया जा सकता है, बट फिर क्या है कि सिंस इसमें काफी आपको घुसना पड़ेगा। No, I have no doubt that I am basically looking into a man who would be the लहसुन king of Bengal at least. तो मतलब मैं शायद आपके जगह में होता, मैं इतना घुस चुका हूँ, मैं 2.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ इस साल, शायद मतलब 3 करोड़ आप क्रॉस कर ही लोगे जिस हिसाब से डिमांड है। मैं तो चाहूंगा ना कि पूरा जो सप्लाई चेन है मैं खुद बैकवर्ड इंटीग्रेट करके मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाऊं, सो दैट ये भी एक
इंटरमीडिएट बन जाए जो लोग आना चाहते हैं बिजनेस? No doubt, no doubt. This is a very good suggestion, and we tried it with Bengal ka local Nadia. I told you that I went to Nadia prior to this. But क्या है कि ये आपको करना होगा एमपी में. ओके. You cannot do it in Bengal, क्योंकि बंगाल का जो गार्लिक है और एमपी का जो गार्लिक है उसमें एक पंच का डिफरेंस है. कुणाल जी, मतलब लहसुन के, मतलब आई एम वेरी वेरी नाइव अबाउट लहसुन, राइट? ग्रेड्स होते हैं कुछ, आप मतलब कौन से ग्रेड्स मतलब बेचते हो, कितने प्रकार होते हैं? देखिए, लहसुन तो अगर हम लोग देखें तो पहले तो साइजेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो. बिजनेस के भाषा में अगर बात करें तो छोटा साइज जिसको मीडियम बोलते हैं, फिर उसका लड्डू होता है, फिर उसका फूल होता है, फिर होता है बॉम्ब होता है, फिर डबल बॉम्ब होता है. जो जनरली डबल बॉम्ब ये सब एक्सपोर्ट होता है. और इसको छिलने के लिए जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो फूल यूज करते हैं. मीडियम से थोड़ा बड़ा और बॉम्ब से थोड़ा छोटा. और टेस्ट के हिसाब से अगर आप बोले तो सबसे टेस्ट जो गार्लिक में है वो है आपका मध्य प्रदेश का, फिर राजस्थान का, फिर यूपी का, और फिर अदर स्टेट्स का इंक्लूडिंग बंगाल. और प्राइसिंग पर किलो में कितना अंतर होता है? प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ओके. ग्रेड्स के डिफरेंट प्राइसिंग होते हैं. जैसे आपको समझ लीजिए, अगर आप हर केजी पे 10 रुपया का, जैसे जैसे साइजेस बढ़ेगा तो केजी पे 10 रुपये का अंतर आता जाएगा. ओके. एंड आपके ये जो 2.25 करोड़ का जो टर्नओवर रहा है जी, इसमें पूरा लहसुन ही है कि और भी कुछ चीजें? देखिए, 24 मार्च तक तो सिर्फ लहसुन ही था. बट 24-25 में हमने थोड़ा सोचा कि इसको, सिंस हम लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं तो कस्टमर से एवरेज कॉस्ट वैल्यू जो थोड़ा बढ़ाते हैं. और सबका डिमांड भी था क्योंकि हम लोग 365 डेज ऑपरेट करते हैं. तो ऐसे हम इस 24-25 में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम वेजिटेबल्स में गए. एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, मशरूम, बेबी कॉर्न, और जो वॉन्टन शीट्स, नूडल्स, so paneer, we went into this to cater to our customers. So about this 2025 we have about 50 lakhs of vegetables revenue from. Very soon we realized that ये जो वेजिटेबल का बिजनेस है हमारा बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है. हमारा बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल्स में यही था कि हम एक कैश पैसा नहीं फंसाओगे. यस, पैसा नहीं फंसाना है. और जिसके कारण इंटरनल एक्यूरेंस के कारण हम ग्रो किए. राइट. पिछले 24 तक शायद ही कुछ बैड डेट रहा होगा हमारा. और 24-25 में डेटर्स होने लगा. फिर इन द मीन टाइम हम लोग शार्क टैंक के भी बॉम्बे ऑडिशन में गए थे. तो उन लोगों ने बेसिकली हम लोगों को जब बुलाया था तो गार्लिक के बारे में ही, लहसुन वाला, और सारा जो वीडियोस या जो भी उन लोगों का पैरामीटर्स था हमने किया था. हम बॉम्बे ऑडिशन में पहुंचे थे. वहां जाने के बाद जब गार्लिक जब तक था तब तक तो ठीक था. जैसे ही वेजिटेबल्स है तो उन लोगों का कुछ व्यूज थोड़ा मुझे लगा, ऐसा लगा कि भाई ये गार्लिक was something they were in favor of, and adding these other things they somehow were not comfortable with. तो फिर अगला 6 महीना मैं सोचता रहा कि इसको क्या करें. रेवेन्यू आ रहा था बट वो एक ऐसा ही पिट था जिसमें आप सेल्स दिखा के क्या ही फायदा. आपका कैश फ्लो, आपका जमा हुआ कैश चला जा रहा है. पहली बार ऐसा होने को था कि भाई हमारा क्रेडिटर्स को हो सकता है और कुछ दिन में डेटर्स क्रॉस कर जाता. उस टाइम भी ऐसा था कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में 1:2.5 का डिफरेंस था. बट फिर भी इतना भी डेटर्स हम लोग कभी भी नहीं देखे थे. तो आई वॉज लुकिंग कि क्या करना चाहिए. आई टॉक टू सेवरल पीपल बट वो राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा था. जिसको कोई ऐसा कोई आदमी हो जो कि इस चीज का काम करता हो और बता पाए इसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. फिर मैं मिला एक सज्जन से. उन्होंने भी बोला कि भाई ये
गार्लिक पे फोकस करो और वेजिटेबल पे मत करो। तो मैं कुछ दिन से फॉलो कर रहा था। आई थॉट दैट द पर्सन इज द एडवाइस इज जेन्युइन एंड वी स्टॉप्ड garlic this vegetables this June 30th. Of course not we were not inclined to cater it since this inception since the starting of this year. We already had cut it down. Only उनको ही दे रहे थे जो हम लोग साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बट फिर भी गार्लिक जब जैसे आप वेजिटेबल्स बनाते हो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप क्रेडिट में काम करो और वो क्रेडिट में काम करना इज अ ट्रैप जिससे आप कभी नहीं निकल सकते। अब जैसे मान लो सितंबर में अगर हम 5 लाख रुपए ड्यूज में थे तो इट्स सच अ स्लिपरी रोड कि आप दिसंबर आते आते 7 लाख में हो जाओगे और आप मार्च आते आते 12 लाख हो जाओगे, फिर आप निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमने अप्रैल से ही धीरे धीरे इसको किया, वो जो भी ड्यूज था उसको कट करते करते हैं और ठीक है रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा बट दैट इज ओके, एटलीस्ट यू विल बी हैविंग स्टडी कैश फ्लो एंड आप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम कर पाओगे। आप को नहीं तो फिर आप कॉस्ट ऑफ फंड्स आप क्यों एडिशनल लाओगे अपने बिजनेस में। right. तो इसलिए हमने वेजिटेबल्स को धीरे धीरे कम किया और बाय जून 30th वी स्टॉप्ड इट एंड नाउ वी आर ओनली ऑन गार्लिक फोकसिंग ऑन इट एंड देयर इज अ प्लान टू गेट इनटू D2C वेरी सून। वी आर वर्किंग ऑन इट, फुल्ली प्रिपेयर्ड होने के बाद ही विल गेट इनटू इट। वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग, कैसा पैकेजिंग होना चाहिए। तो वी आर प्लानिंग टू जस्ट गो अहेड विद दिस प्रोडक्ट एंड फोकस ऑन दिस ओनली। आपके पिल्ड गार्लिक के सेल्फ लाइफ क्या है? सर अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करते हो तो 30 डेज हो सकता है। ओके हम लोग फिर भी 15 डेज बोलते हैं just to be on the safer side and not to tamper with the goodwill of our company. We claim 15 days, but it can easily go up to 30 days. Okay. And मतलब माने मानो फॉर अ कमोडिटी इसको अगर थोड़ा वैल्यू एडिशन कोई कर पाता है तो दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ रेवेन्यूज विद हायर मार्जिन्स। ऐसा कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है या प्लान कर रहे हो? वी आर प्लानिंग। अब जैसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको गार्लिक का पाउडर चाहिए तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। आई यूज दैट हनी के साथ में मिक्स करके, वो गले को बहुत ज्यादा जी 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 गार्लिक पाउडर एक और बहुत सारे आप हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही गार्लिक के। एट द सेम टाइम आप अगर बहुत सारे पिज्जा कंपनीज वगैरह जो भी सॉसेस बनाते हैं उन सब लोगों को गार्लिक पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्लिक ग्रैन्यूल्स, मिंस गार्लिक, डिहाइड्रेटेड, वी आर वर्किंग ऑन देम and very soon we will be trying to bring those to market as well. आप स्टेट कर रहे थे फिर आप नेशनल हो गए, इंटरनेशनल का कोई प्लान्स? इंटरनेशनल का प्लान्स तो ये है कि एक्सपोर्ट का अपने हम लोगों ने सारा लाइसेंसेस बना के रखे हैं और अभी हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उन लोगों को ही देते हैं जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट जी, तो हम लोग अभी खुद से एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि दैट विल अगेन इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ बैड डेट हो सकता है क्योंकि एडवांस नहीं आएगा उन लोगों से, एलसी पेमेंट्स एंड ऑल, और स्पेशली बांग्लादेश में तो करना ही नहीं है फेक एलसीज आ जाएगा। और मैं खुद सिंस फॉरेक्स में काम कर चुका हूँ तो देयर इज अ फेयर आइडिया कि सोनाली बैंक या फिर जो भी, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक नेम्स और नॉट, बट देयर इज अ ह्यूज chances of funds getting stuck in Bangladesh. But they are the biggest consumer of Indian garlic. Right. कोई मिथ है जो आप बस्ट करना चाहोगे गार्लिक के बारे में जो अपने कंज्यूमर्स को पता नहीं होगा? अभी गार्लिक हम लोग दो तरह से ही जनरली अगर आप देखोगे तो हम लोग दो तरह से ही गार्लिक यूज करते हैं जनरली। कैसे? एक या तो गोटा गार्लिक, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि बेचारा संडे को फादर बाजार गया पिताजी और बाजार से मटन या चिकन या फिश लेके आया, अभी बेचारा बैठ के पसीना भी पोंछ रहा है, तब तक उसके सामने एक कटोरे में पानी डाल के लहसुन आ गया, बोला छिलो इसको
अब वो बेचारा क्या ही करेगा, छिलेगा। तो ये एक ऐसा चीज, एक तो ऐसा हम लोग होल गार्लिक यूज करते हैं, दूसरा हम लोग या तो पेस्ट यूज करते हैं। बट कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास गार्लिक छिला हुआ हो और आप सोचो कि उसका क्या करना है। आप उसको मिन्स करना है मिन्स कर लो, आप पेस्ट बनाना है पेस्ट बना लो। अब पेस्ट की बात बताता हूँ। पेस्ट अगर आप देखो तो गार्लिक जिंजर का पेस्ट एक साथ है। गार्लिक का पेस्ट कभी सुना है? बहुत रेयर है, नहीं सिर्फ सुना। गार्लिक। तो अब उसमें भी अगर आप गार्लिक का कोई पेस्ट बनाता है तो उसमें वो विनेगर डालेगा या कोई प्रिजर्वेटिव डालेगा, तो टेस्ट का तो डिफरेंस आएगा ही। और गार्लिक बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। अगर कोई गार्लिक डेली कंज्यूम करता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इट्स अ फनी एग्जांपल। कोविड में हमारे ऑफिस में कोई मास्क नहीं लगाता था। गार्लिक के जो महक है गार्लिक वही तो इन्हेल हो उससे रहा था। कोविड भाग जाएगा। राइट। तो इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट एंड पीपल हु कंज्यूम गार्लिक, आपको हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आपको हेल्दी बनाता है। बहुत लोग ऐसे, अगर आप प्रीवियस जनरेशन को देखो तो वो सुबह उठ के कच्चा गार्लिक खाते हैं। राइट। आपने भी बोला कि गार्लिक पाउडर को आप हनी में मिला के खाते हैं। इट्स वेरी हेल्दी फॉर थ्रोट, फॉर योर हार्ट, फॉर योर मसल्स, फॉर योर बोन्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आ, आज तक जो जर्नी रहा है आपका 5 साल या 6 साल ऑलमोस्ट, गार्लिक के बारे में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? मतलब हर बिजनेस में हर चीज में चैलेंजेस तो होती है, क्या मतलब क्या रहेगा आपका आंसर? तो देखिए, ये जो आप मान लो, आज की मैं बात बताता हूँ। आज एक पुणे से एक जन ने फोन किया मुझे कि सर मैं आपके गार्लिक के बारे में बहुत रिसर्च किया, यही 4:30-5 बजे की बात है, और आपका गार्लिक डिफरेंट है सबसे, तो मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों को गार्लिक दें। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, मैं यहाँ से आपको भेजूंगा, मेरे पास प्रोडक्ट ठीक रहेगा, आपके पास पहुंचेगा, आप प्रोडक्ट ठीक से रखोगे, बट ये जो 2 दिन बीच में है, इसमें प्रोडक्ट कैसा रहेगा कोई नहीं जानता। ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। अगर खराब माल पहुंचता है तो हमारा नाम खराब होगा, आपको भी बुरा लगेगा कि हमने पैसा दिया बट हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये जो एक फैक्टर है कि पेरिशेबिलिटी, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। हम डेली पील करते हैं, डेली, हर दिन पील करते हैं, और विथ एक्सपर्टीज एंड विथ एक्सपीरियंस शाम तक हमारा स्टॉक जीरो हो जाता है। राइट। कोई ना कोई ले ही लेता है, पर जो बच जाता है लोकल डिलीवरी के बाद, वो हमारे जो बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके पास चला जाता है। ऐसा ही भी होता है कि हम लोग हर दिन पूरा दे नहीं पाते, एंड वी ट्राई टू फॉलो दैट मॉडल, क्योंकि ज्यादा रखना इज नॉट हेल्दी। तो किसी को अगले दिन दे दिया तो ठीक है, बट वो फ्रेश प्रोडक्शन होना चाहिए। मैम हाउ सीजनल, मतलब सीजनलिटी कैसा है इसमें? ये डिमांड पे डिपेंड करता है। जब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग एजेंसीज में बहुत ज्यादा रश है, वो लोग फेस्टिव कब, सीजन। फेस्टिव सीजन, या कोई जब जब लोग ज्यादा जाते हैं, विजिटर्स ज्यादा होते हैं। अब जैसे पुरी, दीघा, यहाँ तो सारे टाइम ही प्रेशर रहता है। बट नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जब सीजन होता है, जब वो लोग सारे एंगेज रहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उस पर इतना टाइम दूं या फिर 4 आदमी रखूं। 10 किलो लहसुन चुनने में कम से कम, अगर 4 आदमी को भी लगाते हैं तो 4 घंटे लगेंगे, या ज्यादा भी लग सकता है, मे बी मोर। तो कोई रेस्टोरेंट यही चाहेगा कि उसको इजीली, बिकॉज व्हाट वी डू इज वी सेव टाइम, इट्स अ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है। आपके घर में भी अगर आप लहसुन, आपको छिला हुआ मिल जाएगा, तो जो भी वो खाना बना रहा है, ही विल, दैट विल मेक दैट पर्सन हैप्पी कि भाई मेरे को ये मिल गया, अब मैं इसको आराम से करूंगा, और आपके पसंद लायक गार्लिक होगा। आप हमारा गार्लिक देखोगे, उसमें एक बूंद पानी नहीं होगा, इट्स टोटली ड्राई। अगर मैंने फ्लेवर को ड्रेन आउट कर दिया तो उससे बढ़िया पपीता ले लेता है, पपीता ही डाल देते सब्जी में, या लौकी डाल देते, वो तो वाइट वो भी दिखता है। राइट। बट गार्लिक डालते क्यों? एक पंच आने के लिए। अगर हमने विनेगर डाल दिया या पानी डाल दिया तो वो तो पूरा चला गया। तो दैट इज लाइक चीटिंग योर कस्टमर्स, एंड दैट विल नॉट क्रिएट अ legacy, or it will not give a goodwill to your
कंपनी, ग्रेजुअली आपका जो चेहरा है वो खुल के गिर ही जाएगा। हर बिजनेस में लोग कहते हैं इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट यू आर सॉल्विंग प्रोबेबली द बिगेस्ट हेडेक फॉर अ पातीसा कमोडिटी। तो इतना सारा आपके वैरायटी वाले क्लाइंट्स है, राइट? सबसे कमाल का फीडबैक आज तक क्या मिला आपको? आई एम श्योर देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक्स, राइट? सबसे कमाल जो आप यादगार रहा है, कैसा भी फीडबैक मिला मुझे? तो ऐसे तो जब हमने इस प्रोडक्ट को नया इंट्रोड्यूस किया था तो लोग समझते ही नहीं थे कि ऐसा प्रोडक्ट है। काजू है। हाँ, काजू है, ये एक कमाल का फीडबैक है इनिशियली। तो जब स्टार्ट किया था तो ऐसा ही फीडबैक आता था कि भाई ये तो काजू आप बेच रहे हो, फिर बताना पड़ता था नहीं ये लहसुन है। तो ये है। और कमाल का फीडबैक ये है कि सब ये जो मैंने बोला आपको कि अगर आप लहसुन लेके आते हो तो आपको 1 किलो में 750 ग्राम मिलेगा, बट जब आप 1 किलो उसी प्राइस में लेके आते हो तो यू गेन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, यू सेव टाइम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अब मेरे घर में जो काम करते हैं वो लोग से ही फीडबैक मिलता है कि भाई ये तो आप अगर खत्म हो जाता है वो मेरे सर पे चढ़ जाते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम्हारा कंपनी है और तुम मेरे लिए ला नहीं रहे हो, मेरे को कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है जो कि हर दिन 20 किलो माल लेते हैं, ऐसे हैं कैलकाटा में जो 30-30 लेते हैं। तो अगर वो नहीं मिले, ऐसा भी होता है कि हम वो दिन में 2 बार ऑर्डर किए और हमने उनको केटर किया, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। क्योंकि हमारे साथ क्या है कि हमारे क्लाइंट्स जो है वो लंबे टाइम से हमारे साथ है। कोई भी ऐसा बहुत सारे क्लाइंट हो गए, मैं मान लीजिए 60 to 70% जो 5 साल से काम कर रहे हैं और आज तक काम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ द वे जाके उनका जो डिमांड है, बंद हो, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो जाए, लहसुन वाला का गार्लिक पहुंचेगा ही आपके पास, राइट? तो एक क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप हो जाता है। आप अगर सो भी जाओ, अगर हम कोई ऑर्डर ना उठाएं, हमारा सारा मोबाइल बंद हो जाए, जितने भी एम्प्लॉइज है, अगले दिन सुबह उठ के जब मोबाइल अगर कोई खोलेगा तो ऑर्डर्स तो आएगा ही। तो मानो कि नेक्स्ट 3-5 साल में आप खुद को एंड लहसुन वालों को कहाँ देखते हो? सर 5 साल तो मैं पहले ये ईस्टर्न इंडिया को केटर करना चाहता हूँ। पहले अपने बंगाल को कंसोलिडेट, जो हमारा कैलकाटा मार्केट है, इसको कंसोलिडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होगा हम उतना बड़ा मूव कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव यही है कि ईस्टर्न इंडिया में अपने को हर इम्पोर्टेंट जहाँ भी पिलग्रिमेज है, यहाँ जहाँ बीच है, जहाँ माउंटेन्स है, वहाँ खुद का प्रेजेंस को अच्छे से एस्टैब्लिश करना। बट द ड्रीम इज टू बी ऑन every national newspaper front page, tell them that we are near you and you can order us, we will reach you. मैंने आपका प्रोडक्ट यूज करा है एंड सबसे ज्यादा खुशी मिली मेरे भाई को, मेरे मेड्स को, राइट? एज आप कह रहे थे, क्योंकि इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट हेडेक। तो आई एम योर सेटिस्फाइड कस्टमर। अपने जो ऑडियंस है उनको अगर आपसे लहसुन लेना है तो आप कुछ बोलोगे उनको सामने देख के? तो अगर आपको हमारा गार्लिक ट्राई करना है, पील्ड गार्लिक, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो और वहाँ से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे आप अगर मैं नंबर बोलूँ तो आप 9830300777 पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे ऑफिस से आपको कोई ना कोई टच में आएगा और आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी, और डिलीवरी का हम कोई चार्ज भी नहीं लेते। इट्स अ फ्री डिलीवरी फॉर ऑल आवर कस्टमर्स, वेदर इट्स अ रेस्टोरेंट और वेदर यू आर इंडिविजुअल कस्टमर। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर लहसुन वाला होम पैक्स फॉर D2C कस्टमर्स, जिनको कि हम केटर करना चाहते हैं, ताकि सबके लाइफ में एक ये कन्वीनियंस और टाइम सेविंग एक এফার্ট আয় লোক। ওনার প্রোডাক্ট আমি সত্যিকারের ইউজ করেছি, মানে আমি তো বললাম যে আমাদের যে মেড, শি ওয়াজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট। অ্যান্ড
ওনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি দেখার পর মানে যদি আপনারা কোনোদিন কেনেন, না আমি রিয়েলি মন থেকে চাইবো যে আপনারা যাতে কেনেন, আপনাদের মনে হবে যে এত সিম্পল একখানা প্রোডাক্ট বাট আমাদের লাইফে কত দরকার ছিল। তো মানে আমার যেটা বলার উদ্দেশ্য যে অনেকে প্রচুর ধরনের ক্যাশ বার্ন করে ভুলভাল ব্যবসা করছে বেসিক্যালি, যেগুলোর কোনো দরকারই নেই। লোকে প্রবলেম সলভ করে, এখানে যে প্রবলেমটাই নেই সেগুলোকে লোকে সলভ করতে চাইছে। এন্ড এনাকে দেখুন, একখানা সিম্পল আইডিয়া, খোলা ছাড়ানো রসুন করে কেউ 5 বছরে 2,20,00,000 টাকার ব্যবসা করেছে, প্রফিটেবল, বুটস্ট্র্যাপ, হার্ডলি হয়তো নিজের পকেট থেকে 5-6 লাখ টাকা ঢেলেছে। ইনি কর্মসংস্থান করেছেন 350 মহিলার, যারা বেসিক্যালি গ্রামে হাউসওয়াইফ ছিল, ইনি তাদেরও স্বনির্ভর করেছেন। তো ইনি প্রোসোশাল বিজনেস করছেন। তো ইনি যদি করতে পারেন, আমার মনে হয় আমিও পারি, আপনারাও পারেন। তো আর বেশি কথা বাড়াবো না, আমি নেক্সট উইক বা নেক্সট ফর্টনাইটে আরেকজন ইন্সপিরেশনাল অন্টারপ্রেনারকে নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে, সেও তার কথা বলে আপনাদেরকে মোটিভেট করবে। আজকের জন্য এতটাই। গুড নাইট, টেক কেয়ার অ্যান্ড টাটা।